Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 9. Today we are start new exercise. In new exercise, first we see that what is collinear point. Collinear point, three or more point are said to be collinear if they lies on the same line. If the points are not collinear, then they are called the non-collinear. That is, non-collinear point do not lie in the line. In figure, you see that collinear point A, B, and C are the collinear point, while D, E, F are non-collinear points. Now use the distance formula to show that the given three non-collinear points form. First, in equilateral triangle, a triangle in which all the three angles are equal is called the equilateral triangle. In equilateral triangle, all the sides angles measure of each angle is 60 degree. Type 2 isosceles triangle. An isosceles triangle has the two sides and two sides and two angles opposite to each side. Thus ABC an isosceles triangle if AB is equal to AC and measurement of angle B is equal to measurement of angle C. Type third, scalene triangle. If all the three sides of a triangle are different in length, it's called the scalene triangle. Fourth, right angle triangle. A right angle triangle has one angle equal to a 90 degree, that is right angle triangle. Now by Pythagoras theorem and right angle triangle, a triangle ABC is a right angle triangle if base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Now exercise 9.2 question number 1, prove that if a into minus 4 comma minus 3 b point have the pass 1 and 4 and c are 6 and 11. You find that these are collinear. तो अब आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ए बी और सी. तो हमने इसको फाइंड आउट करना है कि ये कोलिनियर है. तो इसको कोलिनियर फाइंड आउट. अब कोलिनियर पॉइंट हमने ये बोला था कि एक लाइन पे एक मतलब कि एक लाइन पे हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट आ गया और आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट देन ये पॉइंट आ गया. अब मैंने इसको नाम दे दिया ए पॉइंट का, ठीक है. इसको मैं नाम दे देती हूँ बी का नाम दे देती हूँ और इसको हम नाम देते हैं सी का नाम दे देते हैं, ठीक है. तो अब सबसे पहले आपने ये 3 पॉइंट फाइंड आउट करने की, ये कोलिनियर है तो ये सेम लाइन में. सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इसका, ठीक है. फिर देन हम फाइंड आउट करेंगे ए बी एंड देन बी सी. नाउ होल ये आपके पास आ जाएगा. तो आप फाइंड आउट क्या करोगे कि ए बी, ठीक है, प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल, इस पूरी लाइन मीन्स के ए सी के इक्वल आना चाहिए. तो ये आपने इसको प्रूव करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे. तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर द रूट. Put the value of x2 and x1, y2 and y1. You know that x1 is equal to minus 4, x2 is equal to 1, y1 is equal to minus 3 and y2 is equal to 4. Now 1 plus 4 is equal to 5 means 5 square is equal to 25. Similarly 4 plus 3 is equal to 7, 7 square is equal to 49. 25 plus 49 is equal to square root 47. This is equation number 1. Also find the BC. Now find the BC. BC, put the value of x1, x2 minus x1 plus y2 minus 1, y1. So 6 minus 1 is equal to 5. Similarly 11 minus 4 is equal to 7. So 5 square is equal to 25. 25 plus 49 is equal to 74. इज इक्वेशन नंबर 1. इट्स मीन कि आपके पास ए बी और बी सी जो आ गया, मतलब कि आपने ए बी और बी सी फाइंड आउट कर दिया, वो 70 स्क्वायर रूट 72 आ गया. नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना था वो ये राइट साइड और आपने फाइंड आउट करना है लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड आपके पास क्या थी, पूरी लाइन, और पूरी लाइन हमने क्या नाम दिया था, वो ए सी था. नाउ फाइंड ए सी. तो डिस्टेंस फार्मूला x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर द रूट. तो पुट द वैल्यू 6 प्लस 4 मीन्स कि आप -4 था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 4 बन जाएगा. तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. सिमिलरली इस तरह से y1 जो है वो -3 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया. 11 प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा.
10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196। विद प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 296 आ गया। अब इसको इसमें क्या किया हुआ है कि इसको मतलब कि आप अरेंज कर दो कि इसको एलसीएम लेंगे, जैसे हमने उस दिन भी एक क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने इसका एलसीएम लिया था कि ये आ जाएगा 296 आ गया। ठीक है, 296 था, इसको मैंने एलसीएम लेते गए हम लोग, इसमें तो 2 आ गया, दिस इज 2 1 इज 2 2 4 ज़ार 8 एंड 2 8 ज़ार 16। ठीक है, सिमिलरली दोबारा हम लोग इसका ले लेते, मतलब इसको स्क्वायर बनाना है, ये किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर बन जाए कि ये इसका फैक्टर्स हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लें। तो अगर आप इसकी राइट साइड देखो तो राइट साइड इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट साइड इसकी हमारे पास आ जाएगी जी, राइट साइड हम लोग के पास क्या है, 72। ठीक है, 74 मतलब कि ए भी आपके पास क्या है 74 प्लस बी सी आपके पास क्या 74। इन दोनों को आप ऐड करो तो 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 इंटू स्क्वायर रूट 74 आ गया। तो इसलिए हम लोगों ने इसको भी 2 इंटू स्क्वायर रूट 74 बनाया है। तो इसका आप फैक्टर्स बनाओगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ गया, तो 4 के बाद आपके पास आ जाएगा, ये 4 आ गया तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 74 आ जाएगा। अब इसी से ये आपने फाइंड आउट कर दिया कि ये आपके पास, ओ शिट, आपने फाइंड आउट कर दिया कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट ए बी एंड सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विच एनी 2 साइड्स आर इक्वल। तो अब हमने प्रूव करना है कि 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, एक दूसरे 2 साइड्स इक्वल होंगी। तो उसी तरह से आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा, हम लोग लेते हैं बी सी के। सिमिलरली आपने ए बी फाइंड आउट कर दिया उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला से, फिर आप फाइंड बी सी हम लोग उसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए सी आपके पास आ जाएगा, ए सी हमारे पास आ गया जी 5 स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट है तो 5 आ गया। इसी तरह से हम लोगों ने बी सी फाइंड आउट किया, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9, 16 + 9 इज इक्वल टू 25, so स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो आपके अब मतलब कि ए बी सी आपने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है सी ए सी फाइंड, मतलब 3 साइड्स आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपने ट्राइंगल से, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें आपने फाइंड आउट कर दिया ये और ये साइड, ठीक है, मीन्स कि ए बी और बी सी आ गए, कि ए बी और बी सी आपके पास इक्वल आ गया। और सिमिलरली आपने ये फाइंड भी करनी है कि ये किसकी इक्वल है, ये आपके पास ए सी आ गया, तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। सो आपने प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है किसकी, कि ए बी इज इक्वल टू बी सी 5 की इक्वल है, सो इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। So your homework is question number 3 is your homework. Or thank you so much.